کہ مکڑی کو مارنے والے کو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ویڈیو اچھا کئی لگے طرح کی بیماریوں میں وہ تو ملوث ہو لائک جاتا ہے. اور اس کو نہ چینل کو مارے اس سبسکرائب لیے کہ اس کو اعزاز ہے. پیارا میرے سا آقا صلی کمنٹ اللہ علیہ کرنا وسلم کی نہ بھولیں. حفاظت میں اپنا جال آخر بن دیا تک تھا. ویڈیو میں بنے رہیں. یار غار کا مطلب غار کا ساتھی. اور قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یاد کرو اے محبوب جب آپ غار میں تھے اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے. ایک ہی ساتھی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے 10ویں پارے میں. اس غار میں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بیٹھنے کے لیے عرض کیا. خود جا کر اس غار کی پوری صفائی فرمائی اور اس کے سوراخ کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے بند کر دیا کہ کوئی کیڑے مکوڑے نہ آئیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر لے جا کر آرام کرنے کی عرض کی. لیکن ایک سوراخ پر آپ اپنے پاؤں کی ایڑی لگا کر بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کی غرض سے گئے. اس غار کو ابھی بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے تو اتنا چھوٹا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا اندر کوئی, صرف بیٹھ سکتا ہے. کھڑے ہونے والی جگہ نہیں ہے وہ. اور 2 ہی لوگ اندر جا سکتے ہیں غار میں, اتنا چھوٹا ہے. 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, باقی سب پتھروں سے گھرا ہوا ہے. تو روایات میں ہے مشہور کہ ایک سانپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر وہاں پہنچ گیا آپ کی زیارت کے لیے, لیکن اندر جانے کے سارے راستے بند تھے. تو ایک راستہ جس پر آپ نے ایڑی لگا رکھی تھی صدیق اکبر نے, پاؤں پر ان کے سانپ کاٹنے لگ گیا کہ یہ پاؤں ہٹائیں تو میں اندر جاؤں اور دیدار مصطفیٰ کر لوں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ پیر ہٹانے کو تیار نہیں. زہر چڑھتا ہوا ان کے ران تک آ گیا اور ان کا جسم پیلا پڑنے لگ گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. درد کی شدت بڑھ گئی. بعض روایات میں ہے کہ سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا زہریلا ہوتا ہے. وہ کافی پرانا سانپ تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ما لک یا ابا بکر, اے ابو بکر کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے, ایسا لگتا ہے سانپ نے کاٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں ہٹاؤ. کہا آقا وہ آپ کو ایزا اور نہ دے ویڈیو دے, اچھا تکلیف نہ لگے دے دے. تو لائک مجھے اور کاٹتا ہے چینل کو ٹھیک ہے, سبسکرائب لیکن آپ کو پیارا سا ایزا نہ دے کمنٹ دے. کرنا نہ بھولیں. مجھے ایک بات آخر بڑی تک وہ ویڈیو لگتی میں ہے, بنے صحابہ رہیں. میں ایسی محبت تھی. کہاں کہاں آپ کو میں یہ جلوے دکھاؤں. جناب ابو طالب کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب وہ شعب ابی طالب میں حضور 3 سال تک جو بائیکاٹ کے دن گزارے تھے, جانتے ہیں آپ, میں نے بتایا مکہ میں بائیکاٹ کے دن گزارے. جناب ابو طالب رات کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کی جگہ کبھی اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے چادر اڑا کر کے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیا کرتے تھے بڑھاپے کے عالم میں. اور صبح اٹھ کر کے پہلے دیکھتے تھے. تو یہ پوچھنے پر کہ آپ روزانہ حضور کی جگہ پر جو سونے کی جگہ ہے کسی کسی کو ڈال دیتے ہیں, کہا کہ اگر غفلت میں ہم پڑے رہیں اور کوئی مکہ کا کوئی بھی دشمن آ کر کے مارے تو محمد کا قتل نہ ہو, میرے بیٹے کا قتل ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بیٹوں کو نچھاور کر دیتے تھے. صدیق اکبر بھی جب اپنی جان کی پرواہ نہ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر ہٹاؤ, وہ مجھے ایزا نہ دے گا. سانپ اندر داخل ہوا, جی بھر کر کے میرے آقا کی زیارت کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق دنیا میں کون نہیں ہے سوائے ابلیس کے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کوئی مشتاق ہے. واپس سانپ چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت ابو بکر کے پیر میں لگایا, وہ زہر ختم ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق کو زندگی بھر اس زہر کا کبھی درد نہیں محسوس ہوا. یہ معجزہ بھی تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. یقیناً وہ لمحہ مبارکہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, شفا رکھی ہے. ان کا نام پڑھ کر کے شہد کی مکھی شہد میں مٹھاس لاتی ہے تو خود اس منہ مبارک میں کتنی مٹھاس ہوگی. وہ دہن وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام.
नबी पाक और सल्लल्लाहु वीडियो ताला अच्छा अलैहि लगे वसल्लम के साथ तो 3 दिन लाइक तक का वहाँ और क़याम चैनल था। को 3 सब्सक्राइब दिन कैसे रहे लोग, प्यारा सा ये भी मैं कमेंट आपको करना बता ना दूं। ये भूलें। 5000 फीट ऊंचा आखिर तक वीडियो में बने पहाड़, रहें। एक बार आप चढ़ के आना। अल्लाह तौफीक दे आप सबको। हज में जाना हुआ, उम्रे में जाना हुआ तो मेरे आका की वो निशानी देखने के लिए एक बार तो जाएं, क्योंकि ये वहाबियों ने सब छेड़छाड़ किया है हर जगह, लेकिन ये पहाड़ पे चढ़ नहीं पाते, तो वहाँ तक जा कर के कुछ नहीं किया। सुना है भी गारे हीरा में निशानियाँ मिटा दिया, जो लिखा हुआ था उसको ख़त्म किया। बड़ी अजीब सी इनको बेचैनी है, तकलीफ़ है मेरे आका के नाम से, लेकिन कितना मिटाओगे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे या रसूल अल्लाह, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। गारे सौर के आप जाएं, एक बार जा कर के आने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसा सफ़र है। लेकिन इन दिनों में 3 दिन तक जब तक मेरे आका थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी साहबजादी हज़रत अस्मा रोज़ अपने घर से खाना लाती थीं और गारे सौर तक खाना पहुंचाती थी और फिर वापस आती थी। दिन में 2 मरतबा जाती थी खाना लेकर के और फिर वापस आती थी। न कोई उन्हें थकन थी, न कोई उकताहट थी। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर का जो घराना है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुट जाने वाला घराना है, बेपनाह मोहब्बत करने वाला घराना। और सिद्दीक़ अकबर की ही घराने को ये एज़ाज़ हासिल है पूरे सहाबा में, पूरे सहाबा में, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हज़रत अबू बकर की 4 पीढ़ियाँ सहाबी हैं, बाकी किसी को ये एज़ाज़ नहीं है। 4 पीढ़ियाँ, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद बाद में ईमान लाए, अबू कुहाफ़ा वो सहाबी, हज़रत अबू बकर सहाबी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के एक बेटे हैं वो सहाबी, हज़रत अबू बकर के पोते वो भी सहाबी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये चारों पीढ़ियाँ ईमान भी लाई और सब के सब सहाबियत का शरफ़ भी पाई, पूरा ख़ानदान निछावर किया हुआ है। फिर अब यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो गारे सौर में थे, अब देखें रिवायात ये बताती हैं कि मक्का की कुफ़ार वहाँ तक भी पहुँच गए। वो पैरों के निशान देखने के माहिर थे अरब वाले। कभी ऊँटनियों के पैर के निशान ढूंढते, कभी लोगों के गए हुए पैरों के निशान ढूंढते। अरब तो इसमें माहिर थे, हत्ता कि वो पैरों के निशान देख करके बता भी देते कि कौन सा ख़ानदान गया है यहाँ से, कौन से कबीले वाले लोग गए हैं। और जैसे कि मशहूर रिवायत ये है, हज़रत अबू बकर को अबू बकर जो कहा जाता है, उनका जो नाम है ये मशहूर जो हुआ अबू बकर। बकर जो है ना अरब का एक बहुत बड़ा नस्साब आदमी, नस्साब का मतलब वो निशानियां देख करके नस्ब बताने वाला। उसका हाल ये था कि वो पैरों के निशान देख करके तकरीबन वो ख़ानदान का पूरा बायोडाटा बता देता, बायोग्राफी बता देता कि कौन सा ख़ानदान का आदमी यहाँ से गया है। तो वो बकर बहुत मशहूर था कि नस्ब पूरा बताता है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये था कि वो किसी के उंगली का पोर, ये पोर जो है ये देख करके उसकी 8 पुश्तें गिना देते थे कि तेरा बाप ये है, तेरा दादा ये है, तेरा परदादा ये है, तेरा फलां ये है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नस्ब के इसमें इतने माहिर थे, इसीलिए आपको कहा गया वो तो बकर है जो एक ख़ानदान बताता है, ये बकर का बाप है जो 8 पुश्तों तक बता देता है, अबू बकर। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वहाँ थे, तो कुफ़ार जो है पैरों के निशान ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक? पहाड़ तक भी पहुँचे, क्योंकि मक्का में दूसरे ही दिन ये ऐलान हो गया था जो मोहम्मद और उनके साथी को ढूंढ लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे, 100 ऊँट दिए जाएंगे। उस ज़माने में 100 ऊँट का मतलब ये हुआ कि 100 कार, यानी आज के ज़माने में जो कार है, कार की जो कीमत है वही ऊँट की कीमत थी उस वक्त। जिसके पास एक कार है आज वो एक सवारी वाला समझा जाता है, बड़े अच्छे तबके वाला समझा जाता है या मिडिल क्लास का है, और जिसके पास उससे ज़्यादा है तो वो हाई लेवल का आदमी है। अब 100 ऊँट, अभी यहाँ कोई ऐलान कर दे कि 100 मर्सिडीज़ किसी को मिलेंगी तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा 100 मर्सिडीज़ का मतलब क्या है। तो उस ज़माने में सुर्ख ऊँट जो है अच्छा लगे वो मर्सिडीज़ और तो बड़ी लग्जरी गाड़ियों के मुकाबले में माने जाते थे। आम ऊँट अलग है, सुर्ख ऊँट यानी लाल रंग का ऊँट
आखिर तक वो वीडियो में लग्जरी ऊँट था, जिसके पास होता है वो बड़े किस्म का आदमी। और वैसे 100 ऊँट का ऐलान हो चुका था मक्का में कि जो ढूंढ करके लाएगा उसे 100 ऊँट मिलेंगे। आपको ऊँटों की अहमियत अभी नहीं मालूम, ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, लेकिन उस वक्त की सवारी भी वही थी, उनकी सफ़र का सारा दारो मदार उस पर था। इस इनाम के चक्कर में दर दर की लोग जो है खाक छान रहे थे, ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच भी गए थे। अब गार तक भी पहुँच गए, यहाँ तक कि उस मकाम तक पहुँचे कि अगर वो अपने पैरों की एड़ियाँ उठा देते तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर उनको साफ नज़र आ जाते हैं। हज़रत अबू बकर गार में बैठे उनकी गर्दनें देख रहे थे, लेकिन कुफ़ार और मुशरिकीन हुजूर को और हज़रत अबू बकर को देख नहीं पा रहे थे। गार के दहाने तक, मुंह तक तो पहुंच गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की हिफाजत के लिए वहाँ पर 2 निशानियाँ ऐसी पैदा फरमाई, एक मकड़ी ने जाल बुन दिए, एक कबूतरी ने फ़ौरन अंडे दिए। ये निशानी थी उस ज़माने में कि जहाँ कबूतरी अंडे देती है इंसानों का आना जाना नहीं होता, और मकड़ी ने जाल लगाया, इसका मतलब अगर कोई अंदर गया आया हुआ होता तो जाल टूट चुका होता, और मकड़ी को जाल लगाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इतना घना जाल लगा दिया था मकड़ी ने चंद घंटों में। तो अब ये 2 निशानियां देख करके कुफ़ार वहाँ तक पहुँच करके भी हुजूर के करीब ना जा सके, पलट कर चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी की हिफाजत करना चाहे वो तुम्हारी गर्दन तक करीब लाकर दुश्मन को भी दूर फेंक देता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जान है, जान है, जान क्या नज़र आए। हुजूर जो है जाने कायनात हैं, और जान किसको नज़र आती है? जान है, जान क्या नज़र आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, वो सोए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो करीब आकर के भी देख ना सके। और ये दोनों अच्छा चीज़ें लगे निशानियां बन गई। तो इसीलिए और चैनल को बुजुर्गों ने लिखा है सब्सक्राइब, कि न मकड़ी को प्यारा मारो सा कमेंट न करना कबूतर ना के भूलें। साथ ज्यादती करो। आखिर तक ये दोनों वीडियो मेरे में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करने वाले पहरेदार हैं, जिसको आज कहते हैं ना मुहाफिज नामूस रिसालत। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की पहरेदारी करने वाली मकड़ी भी है और कबूतरी भी है, और दोनों इज्जत पाए हुए लोग हैं। मकड़ी को मारना मुना है, हाँ बस ये है कि उसके जाल को साफ करें, लेकिन उसको ना मारे। बाज़ बुज़ुर्गों ने हयातुल हैवान, एक किताब है हैवानात, अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें तो उन्होंने लिखा है कि मकड़ी को मारने वाले को कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, कई तरह की बीमारियों में वो मुलविस हो जाता है। उसको ना मारे, इसलिए कि उसको एजाज़ है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अपना जाल बुन दिया था। और दूसरी चीज़ कबूतरी का भी है। कबूतरी एक ऐसी, कबूतर ही समझ लें, एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है। आज भी अगर कौवा आ जाए तो भगा देते हैं, कबूतर आए तो कोई भगाता नहीं। हरम की हर मीनार में आपको, मस्जिद नबवी में, खाने काबा के अंदर, सब जगह आपको कबूतर ही कबूतर नज़र आएंगे। बेहिसाब कबूतर भरे हुए हैं, लेकिन कभी आप जा कर के देखना, न मस्जिद नबवी में वो बीट करते हैं, न हरम पाक में कहीं पखाना उनका पड़ा हुआ मिलता है। गंदगी नहीं फैलाते, लेकिन वो करें ना करें अपनी जगह पर हज़ारों लाखों परिंदों में हरम में रहने का शरफ़ अगर किसी परिंदे को है तो वो कबूतर को है। वो मेरे आका की जालियों के पास भी आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद पर अपना बसेरा किए हुए हैं हज़ारों की तादाद में। बहरहाल वो उनकी किस्मत है, और अल्लाह ताला ने उसको ये एजाज़ दिया। खाली वहाँ मक्का और मदीना में नहीं, आप जहाँ के भी मुक़द्दस मकामात देखेंगे कबूतर वहाँ मिल ही जाते हैं। कबूतर की ये फितरत है, मिजाज है, वो मुक़द्दस मकामात में अपना घर बनाते हैं। मस्जिदों को, मज़ारात को, वहीं पर वो अपने घर बनाते हैं। ये आला नसब होने की भी अलामत है, और अच्छे अशरफ मिजाज होने की भी अलामत है।